तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नाथद्वारा में जियो चेयरमैन आकाश अंबानी पहुंचे हैं और बेहद अहम ये मौका जो है ये इस वक्त है। श्रीनाथ जी अंबानी परिवार के कुलदेवता हैं और अब श्रीनाथ जी को जियो 5G टेक्नोलॉजी जो है समर्पित और अब ये अहम लम्हा 5G की लॉन्चिंग का। With blessings of Shinath ji, I would kindly request His Holiness Chiranjeev Vishal Baba Sahab to offer his blessing to Shri Akash Ambani and the entire Reliance family for the historic 5G launch from Moti Mahal Nathद्वारा. Shri Harihi. Pushti Marg is the oldest Bhakti Marg, and yet its sensibilities are young. Like young people, Pushti Marg has always been receptive of beautiful things, beautiful ideas, and technological advancement around it. Like that time when Shri Gusain ji found royals of then time princes looking cute and kulhe, and had something similar headgears made for Shinath ji. Or that time when all of India was getting electricity and against other temple policies, Nitya Lilast, Goswami Tilkayat, Shri Govind Lal ji Maharaj got this Nathद्वारा temple wired for light. Or the switch from firewood to LPG gas in Prabhu's Rasoi, a decision by my father, Shriman Tilkayat Maharaj, took for the welfare of the Rasoiyas. Pushti has always looked forward, accepted changes, and many a times been a trailblazer in doing so. It is well known for adoption of anything and everything that brings joy to Prabhu as well as his disciples. With the launch of 5G here, this fact is proven yet again. High-speed internet in a small but advanced temple town will mean so much more and is on set to be torchbearer in being ahead of the curve in current timing. It will mean better darshan vyavastha, better technology-based distribution of prasad, drone-equipped agriculture, and much more which we shall learn from Jio platforms. I congratulate Shri Akash Ambani first for being the youngest chairman of telecom platform and Shri Anant and Isha Ambani to take on responsibilities of energy and retail business, which is idea for young yet visionary leadership. As has been their family's motto, they have proven yet again that they are visionaries in bringing the world's best to India. Blessings to Mukesh Bhai and entire Ambani family. And offering it first to the master of the whole world, who is the consumer of the best, Lord Srinath ji. यह नाथद्वारा नगर ही नहीं अपितु विश्व के समस्त प्रभु श्रीनाथ जी के अनुयायी के लिए गौरव का विषय है कि 5G का प्रारंभ श्री जी की नगरी से होने जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, श्री जी की नगरी में 5G का स्वागत है। मैं श्री जी ब्लेस यू। थैंक यू। I would now request Shri Akash Ambani to grace us with the monumental moment by digitally launching Jio's true 5G service and share his vision for the 5G launch.
जय श्री कृष्ण विशाल बाबा, जय श्री कृष्ण बद्दा। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G के सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। I would now request Shri Akash Ambani and Srimati Shloka Ambani to pay their respects and tribute by presenting True 5G handheld to His Holiness. तो सीधे तौर पर तस्वीरें आप इस वक्त राजस्थान से देख रहे हैं। जियो चेयरमैन आकाश अंबानी, आपको बता दें कि दर्शन पूजन के बाद 5G की लॉन्चिंग उन्होंने कर दी है। जियो 5G टेक्नोलॉजी श्रीनाथ जी को समर्पित इसी के साथ किया और साथ ही साथ इससे पहले आपको बता दें कि परिवार के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन किए और उसके बाद जियो 5G टेक्नोलॉजी श्रीनाथ जी को समर्पित किया। और इस वक्त जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि इस 5G की लॉन्चिंग हो चुकी है। और साथ ही साथ अंबानी परिवार के कुल देवता की अगर बात करें तो वो श्रीनाथ जी हैं। इसीलिए आज जब राजस्थान में जियो चेयरमैन आकाश अंबानी पहुंचे तो सबसे पहले परिवार के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन पूजन करने के बाद अंबानी परिवार ने आपको बता दें कि जियो 5G टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग की। तो आज बड़ा दिन है राजस्थान के लिए, इसे माना जा सकता है। साथ ही अंबानी परिवार के कुल देवता हैं श्रीनाथ जी, इसलिए जब मौका राजस्थान का हो और वहां पर ये परिवार पहुंचा हो तो दर्शन पूजन ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले अंबानी परिवार ने दर्शन पूजन की श्रीनाथ जी के स्थान पर जाकर, मंदिर जाकर। इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी का शुभारंभ लॉन्चिंग कहा जा सकता है किया गया। और इसकी तैयारियां कैसी रही थी उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का समापन हो गया है, यानी अब
रिलायंस जियो की तरफ से राजस्थान को ये सौगात कहा जा सकता है कि मिल गई है। दर्शन और पूजन के बाद 5G की लॉन्चिंग जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने कर दी है। वो अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे। कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि फोटो सेशन भी परिवार की तरफ से कराया जा रहा था। तो एक कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए बड़ा तोहफा है और धीरे धीरे आपको बता दें कि रोल आउट हो रहा है 5G का कई शहरों में। और अब इसकी शुरुआत से ना सिर्फ जो यूजर्स हैं उन्हें सहूलत दस्तयाब होगी, बल्कि उन के किसी तरह की भी तैयारी में एक तरह से कहा जा सकता है कि पंख लगेगा। 4G के थ्रू जो उन्हें सर्विसेज मिलती थी उससे कहीं स्पीड में ये सर्विसेज मिलेंगी। तो इससे कहा जा सकता है कि जो थोड़ी बहुत रुकावट थी पहले, अब वो रुकावट दूर हो चुकेगी, क्योंकि राजस्थान में आपको बता दें कि 5G सर्विस की लॉन्चिंग हो चुकी है। तो ये राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा सकता है जियो की तरफ से। जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने अब से कुछ देर पहले दर्शन पूजन करने के बाद 5G की लॉन्चिंग कर दी है। तो बिग पुश इसे माना जा सकता है रिलायंस जियो की तरफ से, और राजस्थान को ये तोहफा मिला है। आने वाले दिनों में कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसे रोल आउट किया जाएगा, जैसा कि रिलायंस ने पहले ही इस ताल्लुक से जानकारी दी है। तो अभी राजस्थान से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आकाश अंबानी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। और कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने सबसे पहले कुल देवता श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन किए, माथा टेका, एक तरह से कहा जा सकता है कि आशीर्वाद लिया। इस शुरुआत को लेकर ना सिर्फ आशीर्वाद लिया, बल्कि इस नए पुश को यानी नई शुरुआत को राजस्थान के समर्पित जो है किया है 5G टेक्नोलॉजी को, श्रीनाथ जी को। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आकाश अंबानी अपनी पत्नी के साथ मंच पर पहुंचे। और इसी मंच पर कुछ देर पहले आपको बता दें कि दर्शन पूजन करने के बाद 5G की लॉन्चिंग उनके जरिए की गई और काफी खुश नजर आ रही उनकी पत्नी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 5G की लॉन्चिंग की जाने वाली थी। तो कहा यह जा सकता है कि राजस्थान को एक बड़ा तोहफा मिला है। राजस्थान के लोगों के लिए आज का दिन जो है बड़े दिन की तरह माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो डेटा सर्विसेज मिल रही थी राजस्थान वासियों को 4G, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो रुकावट रही होगी या फिर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब इसमें पंख लगेगा। और खासकर अगर बात हम शिक्षा की कर लें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी, एक तरह से कहा जा सकता है कि रफ्तार है। आने वाले दिनों में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र और छात्रा हैं वो 5G के माध्यम से अपनी बेरोक टोक शिक्षा यानी सोशल मीडिया के जरिए रिलायंस ने अब उसको गति देने का काम किया है। 5G टेक्नोलॉजी जिस तरह से लॉन्च की गई है और अब चूंकि गति का जमाना है तो कितनी संचार सेवाएं और उसमें जो क्रांति आने वाली है, कितने सारे काम जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे, वो काम अब यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसकी विधिवत शुरुआत आज जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने यहाँ पर की। उनकी पत्नी वहाँ पे साथ थी और शमसिक भाषण उनका एक रहा, उद्बोधन रहा, उसमें यही रहा कि सबको जोड़ने की बात कही गई है। तो ये एक सामने निकल के आ रहा है कि जिस तरह से रिलायंस का काम रहा है वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से आधारित किया। बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम था लेकिन बहुत गरीब तरीके से हुआ है। श्रीजी की नगरी में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है। बिल्कुल श्रीजी की नगरी से, क्योंकि अभी यहाँ पर केवल अडोप्टर्स लगाए गए हैं यहाँ पे जगह जगह, वो यहाँ के लोग जो है उसको एसेस कर पाएंगे और शुरू भी हो गया है वो यहाँ पे। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से शुरुआत की गई है, जो कि मुकेश अंबानी जी थे वो यहाँ बोल के गए थे कि यहाँ से करना शुरू चाहते हैं और मंदिर कमेटी ने पूरी यहाँ पे परमिशन दी और आज पूजा अर्चना के बाद में आज 5G की लॉन्चिंग यहाँ से हुई है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में इसकी शुरुआत विधिवत लॉन्चिंग जो है वो नाथद्वारा से की गई है और सबसे पहले श्रीनाथ जी नगरी आने वाले जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वे तेज जो रफ्तार का जो इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट है, उसको निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से उपयोग कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत यहाँ पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी द्वारा डिजिटल लॉन्चिंग के बाद में कर दी गई। आप देखिए कि पूरी जियो की टीम को आप देख सकते हैं
यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारी चल रही थी, जिसमें जियो की जो पूरी टीम है वो आप देखिए मुस्तैदी से लगी हुई थी और कार्यक्रम बेहद गरिमापूर्ण हो इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। ये वो पूरी टीम है जिसने विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की तैयारियां की थी और फिर जब आकाश अंबानी यहाँ पर आए हैं तो इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। इसके साथ ही आप देखिए कि जो जियो की टीम, जो कि इसमें मेहनत करने वाली जो टीम रही इस कार्यक्रम को लेकर, उनका फोटो सेशन जो है आप देख सकते हैं मोती महल के यहाँ पर चल रहा है। जियो की जो मेंबर जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर डटे हुए थे वो फोटो सेशन कर रहे हैं। आप इनके चेहरे की खुशी देख सकते हैं क्योंकि जियो 5G टेक्नोलॉजी जिसकी लॉन्चिंग की बात लगातार की जा रही थी, श्रीनाथ जी की इस पावन नगरी में, इस धार्मिक नगरी में इस टेक्नोलॉजी को विधिवत रूप से चेयरमैन आकाश अंबानी द्वारा लॉन्च कर दिया गया, डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया गया। बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और अपने संक्षिप्त से उद्बोधन में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, पूरे देश को एक साथ इस 5G टेक्नोलॉजी के मार्फत जोड़ना चाहते हैं और इसी मकसद के साथ में इस हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत यहाँ पर की गई। और सबसे पहले उनका कहना था कि सबसे पहले श्रीजी बाबा को ये जो सेवा है ये समर्पित की गई है, सबसे पहले श्रीजी बाबा के चरणों में ये सेवा समर्पित की गई है और उसके बाद में ये सेवा जो है श्रीनाथ जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई है, श्रीनाथ जी की पावन नगरी में रहने वाले लोगों के लिए की गई है और अब कुछ दिनों बाद में यह सेवा कमर्शियल रूप से पूरे देश भर में शुरू हो जाएगी। तो एक बेहद गरिमापूर्ण, बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम में जो है वो इसकी शुरुआत यहां पर की जा चुकी है। डिजिटल माध्यम से रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग कर दी है। जी, सीधे तौर पर तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखा रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये परिवार अब रवाना हो चुका है यहाँ से, तो बिग पुश इसे माना जा सकता है। इस क्षेत्र में, संचार के इस क्षेत्र में रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी श्रीनाथ जी को समर्पित किया है क्योंकि कुल देवता हैं श्रीनाथ जी अंबानी परिवार के। जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन किए, साथ ही उनके श्लोका अंबानी भी साथ रहीं, यानी उनकी धर्मपत्नी भी साथ रहीं और श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही इस बड़े तोहफे को समर्पित किया श्रीनाथ जी को आकाश अंबानी ने, जो कि आपको बता दें कि जियो चेयरमैन हैं। तो ये प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है, इस प्रोग्राम का समापन हो चुका है। आपको बता दें कि इससे किस किस फील्ड में फायदा पहुंचेगा, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है, ऐसा कहा जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने। सरकारी तंत्र और साथ ही साथ अगर बात शिक्षा की करें तो शिक्षा के मैदान में भी लोगों को बड़ा फायदा होगा, लेकिन सबसे पहला तोहफा ये श्रीनाथ जी के प्रांगण में आने वाले लोगों को दिया है रिलायंस जियो ने। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तो हेडलाइंस की खबरों को आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी आज राजस्थान के नाथद्वारा पहुंचे और यहां उन्होंने जियो की 5G तकनीक को श्रीनाथ जी को समर्पित किया। इसके साथ ही आज से जियो की 5G की सर्विस भी लॉन्च हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समारोह में हिस्सा लिया। युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी
जितने साथियों को ये ऋण मिला है उसमें से 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, मुद्रा योजना का लाभ पाने वालों में लगभग 70% लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। तो टिकट आवंटन के बाद चिंतपूर्णी कांग्रेस में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। यहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमनप्रीत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। अमनप्रीत ने कहा कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलवान सिंह ठाकुर ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस की हाल ही में आई 17 प्रत्याशियों की सूची में चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट दिया गया। अब सैकड़ों कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं आज अपने पद से इस्तीफा देती हूं, क्योंकि इस करके दे रही हूं कि जो आपने टिकट क्लियर की है सुदर्शन सिंह बबलू के नाम पे, वो बिल्कुल सही बंदा नहीं है, बहुत करप्ट बंदा है। इस पर कम से कम 3-4 मामले दर्ज हुए हैं और उसमें एक जमानत पर है। और ताज़ा मामला था एक है कि जो इस बार 2-3 महीने हुए हैं उस पर जमानत पर रहा है और इसको टिकट ना दी जाए, कैंसिल की जाए इसकी टिकट। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा ने चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 केंद्रीय नेता हिमाचल में चुनाव प्रसार करेंगे। अधिकांश नेता अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली करवाना चाहते हैं। और इस वक्त सूची आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। देहरा में बीजेपी की टिकट पर रमेश धवाला ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए रमेश धवाला ने कहा कि अब मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि देहरा और ज्वालामुखी में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। धवाला ने निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह पर भी हमला बोला। धवाला ने कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं आपका ऋण उतार दूंगा। इस मौके पर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रविंद्र सिंह रवि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो चुनाव आ रहा है, हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो फूल के लिए वोट डालने के लिए कहेंगे, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम रिकॉर्ड मतों से ज्वालामुखी में भी और देहरा में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो बनाएंगे। 5 साल के लिए अगर हमारे लोगों को आशीर्वाद जो है लोगों का मिल जाता है, हमारी जीत होती है, तो हम 5 साल के बाद वो लोगों के पास फिर जाएंगे और आज जो है जो क्या क्या कमी थी, क्या समस्याएं थी, क्या मूलभूत समस्याओं का उन्होंने समाधान क्यों नहीं किया, उसका जो है वो पूरी समीक्षा करे। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उनको छुरा गाँव गया, ये हमारी अपनी ही कार्य। और इससे पहले धवाला नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था, वो इसलिए क्योंकि उनको ये खबर मिली थी कि उनका टिकट कट चुका है, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उधर विधानसभा ज्वालामुखी से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में शीश नवाकर हजारों समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय तक रोड शो भी निकाला और अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उसके बाद समर्थकों सहित पूरे शहर की परिक्रमा की और चुनावी सभा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने कहा कि 2012 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर 5 वर्ष बिना क्षेत्रवाद जातिवाद के समान रूप से हर वर्ग को विकास कार्यों से लाभान्वित किया है। ये क्षेत्र ज्वालामुखी मंदिर मां के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर और पहचान मिले।
देखिए, आज मैंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के लिए मां ज्वाला का आशीर्वाद लेके और ज्वालामुखी की जनता का आशीर्वाद लेके अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ज्वालामुखी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद मुझे देगी और एक बार फिर मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। जो विकास के काम 12 से 17 के बीच में जब हम विधायक थे उस वक्त हमने शुरू किए थे, कुछ एक तो हमने उस वक्त कंप्लीट कर दिए थे। जैसे आज हम इस सचिवालय में खड़े हैं, एसडीएम कार्यालय में, ये भी हमारे समय में ही बनाया गया और इस एसडीएम ऑफिस भी हमारे समय में खोला गया और ये मिनी सचिवालय भी हमारे समय में बनाया गया। कई काम हमने उस समय में पूरे कर दिए थे, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए थे और हम कोशिश करेंगे कि उन अधूरे कामों को भी पूरा करें। कांग्रेस ने लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में लाहौल स्पीति में नया कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के शासन काल में ही शुरू किए गए थे। लाहौल स्पीति कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रवि ठाकुर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया और उन्हें टिकट दी गई है। तो मेरे साथ इस समय स्वयं रवि ठाकुर जी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के मुद्दे लाहौल स्पीति में है और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, इस बारे में जानना चाहेंगे। जी सर। मैं सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी और रानी प्रतिभा सिंह जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस लायक समझा कि मैं दोबारा से यहाँ से लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ूँ, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारी लाहौल स्पीति की जनता जिनका प्यार मुझे पिछले 5 सालों भी मिलता रहा, बेशक हमारी सरकार नहीं थी, उसके लिए मैं तमाम जनता का धन्यवाद करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो मुद्दे हम लेके जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो नाकामियाँ रही है हमारे सरकार की, जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था वो एक समझता हूँ एक झूठ का पुलिंदा था, क्योंकि एक भी कार्य नहीं हुआ है और जितने भी कार्य हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चले हुए थे जो अधूरे थे उसमें भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है विकास के कार्य। इन्होंने आनन फानन में जब 4 साल 11 महीने पूरे हो गए तो सिर्फ पट्टिकाएँ लगानी शुरू कर दी उद्घाटन की और शिलान्यास की। उद्घाटन की तो वो पट्टिकाएँ थी जो पहले उद्घाटन हो चुके थे, चाहे श्री वीरभद्र जी ने किए थे, हमने किए थे। कई पट्टिकाएँ हटा के अपनी पट्टिकाएँ लगा रहे हैं दोबारा से। और ऐसे कई, जैसे कि कोई महिला मंडल है या कोई ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि पहले से इस्तेमाल हो रही थी, उस पर 6-6, 7-7 साल बाद पट्टिकाएँ लगा रहे हैं उद्घाटन की। और जो इन्होंने शिलान्यास किए हैं उसमें 10-10 हज़ार रुपये का टोकन बजट ही रखा है और किसी भी तरह का बजट का या कोई ऐसा सैंक्शन कुछ भी नहीं है। और मैं इसके लिए मंत्री महोदय से श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहता हूं कि किस स्कीम में कितना बजट है, इस पे श्वेत पत्र जारी करें कि जनता को पता चल सके। तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, किसानों के लिए मार्केटिंग यार्ड चालू करेंगे, जो कि ये सिर्फ वायदे करते रहे और एग्रीकल्चर मंत्री होने के बावजूद इन्होंने मार्केटिंग यार्ड के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो इसी तरह से हेल्थ का देख लिए, ICMR का नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, जो कि हमारी सरकार लेके आई थी इसको। मैं जब कमीशन में था अनुसूचित जनजाति आयोग में, हमने करवाया था ये कार्य। तो इस तरह से बहुत से कार्य हैं, तंदी संगम घाट है, आपके जो हम सेना में भर्तियां करा रहे थे वो भी बंद है। तो हर तरह से यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और पूरा बदलाव का मन बनाया और इस बार निश्चित रूप से हमारी सीट अभी जीतेंगे हम और कांग्रेस की झोली में डालेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर आपका। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी रवि ठाकुर जी का कहना है कि जो पीछे जो काफी काम अधूरे पड़ गए थे और बीजेपी के सरकार में नहीं हुए थे उनको जो है पूरा करेंगे। उधर लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के पदाधिकारियों का आला कमान पर गुस्सा फूट पड़ा और जवाहर शर्मा को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जवाहर शर्मा को टिकट देने की बात की जा रही थी, लेकिन रामलाल मारकंडा को टिकट दे दिया गया। अब आगामी रणनीति बनाकर जवाहर शर्मा को निर्दलीय लड़ाने पर विचार किया गया।
आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सिरमौर में 16 मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारी और अधिकारी मोर्चा संभालेंगी। मतदान केंद्रों में तैनात होने वाले पीआरओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स, सुरक्षाकर्मी सभी महिलाएं होंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. गौतम ने बताया कि जिला सिरमौर में आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 16 मतदान केंद्रों पर तैनात होने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी समेत सुरक्षाकर्मी महिलाएं ही होंगी। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के प्रति उत्साहित करने के मकसद से जिला के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पोलिंग स्टेशन दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 2 पोलिंग स्टेशंस मॉडल की तरह बनाए जाएंगे, जहां पर सभी सुविधाएं मतदाताओं को उपलब्ध होंगी। जिला सिरमौर में 16 ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिनको महिला कर्मचारियों द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा, जिसमें सारे हमारे पीआरओज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग अफसर्स और जो सिक्योरिटी वहाँ पे लगेगी, जो मैनेजमेंट में लगेगी, वो सारी महिलाएं ही वहाँ पे तैनात की जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारे पीपल विद डिसेबिलिटी के लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जिनको किसी न किसी वजह से कोई ना कोई उसमें जो है डिसेबिलिटी होती है, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी हर एक विधानसभा में जो है वो एक पोलिंग स्टेशन जो है वो पीपल विद डिसेबिलिटी वाले लोग जो मैनेज करेंगे। उसमें जितना भी स्टाफ हमारा होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, पोलिंग अफसर, सारे जो है वो स्पेशली एबल्ड लोग। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों पर हमारी नजर। इन तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।